Good morning, class. Today we are going to discuss about Microsoft Windows, and in this lecture we will discuss about Windows versions, components and so on. बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करते हुए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, विंडोज। यहाँ पे देखेंगे, हियर वी विल सी देयर आर लॉट ऑफ वर्जन्स फॉर विंडोज। फर्स्ट है विंडोज 1.0, that means it was launched in 1985, and the performance was very poor. सॉफ्टवेयर वेरी बहुत कम अवेलेबल थी, ignored by the market. And in Windows 2.0 that it was launched in October 1987, and the performance, better response from the application developers, is still poor performance, not widely accepted. But in 3.0 May 1990, we can say that will provide a better performance. And second point is that better acceptance due to availability of the faster machines. Demand for software industry increase. That means we can say on that time in 1990, software is very demanded for the Windows. Windows 3.1, it was launched in April 1992. That was very improved user interface, and in those versions we can say that was launched the new techniques OLE. Write down OLE, object linking and embedding. OLE, this was basically it was used for the database linking, database connections. That we can say that is the object linking and embedding techniques for sharing the data between the applications. Okay, in April 1992. And then in 3.11, it was launched in March 1994. That means better network support, number one point, better and more efficient. That we can say every versions have changed, कुछ ना कुछ बदलाव और चेंजेस होते रह गए। और अमूमन इन स्टार्टिंग फेज 32 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स। दैट मीन्स ये सभी बीट जो आपको दिख रहा होगा ना, मान लीजिए सपोज बीट होता क्या है, दिस इज द प्रोसेसर आर्किटेक्चर, this is the processor architecture. First is we can say this is 32 bits, 16 bits, 16 bits, 16 bits processor architecture, processor architecture. Okay, फिर अगेन वी कैन से 32 बिट्स, ये भी है। इनोवेशंस होते रहे हैं, और ये प्रोसेसर आर्किटेक्चर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे निर्भर करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कौन से प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स पे चलेंगे। हियर वी कैन सी, राइट डाउन, डायग्राम बना लीजिए। 32 बिट्स, processor architecture, 32-bit processor architecture. So again we will see 64-bit architecture. अभी आपके सामने जो दिखते होंगे अमूमन जितने भी आर्किटेक्चर समूह 64-bit आर्किटेक्चर्स होते हैं। 64-bit आर्किटेक्चर क्या कहेंगे क्लास हम लोगों के पास? 64-bit आर्किटेक्चर। समय बिट्स नहीं लिखी, बिट लिखी। लिख दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यस नहीं होगा हमेशा।
आप समझ चुके हैं ये क्या है, 16 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर, 32 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर और 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आर्किटेक्चर पे जाएगा, यस या नो। अब अगेन वी विल सी विंडोज 98 इट वाज रिलीज्ड ऑन जून 1988, 1988 में इसको लॉन्च किया गया, लाया गया। एंड 98 क्या था, ये इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज डिजाइन स्पेशली, ये बेसिकली डिजाइन किस चीज़ के लिए किया गया था, कंज्यूमर्स के लिए। पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम्स आर कॉमन एट वर्क एट होम, और इंटरनेट कैफे जहाँ पे आप इसको ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, वर्क बेटर प्लेस बेटर, है ना। दैट मीन वी कैन से कि इसमें क्या था, वर्क, इसका कोटेशन था, टैगलाइन, कि काम बहुत अच्छे से कर रहा था, बेटर वर्क प्ले थी। उस समय यूएसबी को लाया गया, यूनिवर्सल सीरियल बस, पहले देखते होंगे डीवीडी डिस्क आता था बहुत पहले, तो क्या था इस 98 वाले में देते, फ्लॉपी डिस्क भी आया करते थे। विंडोज मिलेनियम आया, एमी डिजाइन फॉर द होम कंप्यूटर्स यूज। विंडोज मिलेनियम ऑफर्स न्यूमेरिक numerous music videos and home networking enhancement and reliability in problems compared to the previous versions. First appearance system restore failure that can roll back your PC's shift software configuration to a data or time before a problem occurred. Windows Movie Maker provides the user with the tools to digital edit, save and share home videos, and with the Microsoft Windows Media Player 7 technologies we can find, organize and play. Windows Millennium में क्या था, अमूमन हम लोग सिस्टम को रीस्टोर कर सकते थे, अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता था उसको रीस्टोर कर लेते थे, रोल बैक कर लिया जाता था। जैसे यानी कि डाटा आप स्मार्टफोन में देखते हैं, किसी कारणवश डेटा आपका चला गया, आप रीस्टोर कर देते हो, चीज़ फिर से आ जाती है ना, कोई चीज़, दैट मीन्स रोल बैक होना। तो विंडोज मिलेनियम्स में ये सारी चीज़ें थी, दैट मीन्स ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड इन द विंडोज मिलेनियम। And next we will see the Windows 2000 professionals, and in this topic we will discuss about कि उस समय नेटवर्क एंटी वर्क स्टेशंस हैं, दैट मीन्स वी कैन से more than just upgraded to Windows anti workstation 4.0. Windows 2000 professionals is designed to replace a Windows 95 98 Windows anti workstation 4.0 on all the business desktop and laptop built on the top of the proven Windows Anti-Workstation 4.0 code base. Windows 2000 adds some major improvements in the reliability of the use, internet compatibility, and support for mobile computing. Among other improvements, Windows 2000 Professionals simplifies hardware installations by adding support for a wide variety of the new plug-and-play hardware, including advanced networking and wireless products, USB devices. IEEE Institute of Engineer and Electronics, लिखिए फुल फॉर्म, USB का पहले लिखेंगे, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB you will write universal serial bus. IEEE Institute of Engineer and Electronics, Institute of Engineers and Electronics, Institute of Engineers and Electronics. दैट मीन्स ये सारी चीज़ें आई, और फिर आया देन गिग टाइमर। मतलब क्या था, जैसे जैसे विंडोज चेंजेस हो गए उसके फीचर्स चेंज हो गए, यूएसबी कैपेबिलिटी आ गए, वायरलेस से आप कनेक्ट कर सकते थे। पहले क्या था, वायर के थ्रू ही कनेक्ट कर पाते थे, अब डायरेक्ट कनेक्ट करना संभव नहीं था। बट जैसे जैसे विंडोज में रिवोल्यूशंस होते चले गए, चेंजिंग होते गया, ऑफ कोर्स दैट विल बी यू कैन कनेक्ट कंप्यूटर विदाउट एनी वायर, बिना किसी वायर के आप आसानी से उस चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है विंडोज एक्सपी। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज द वेरी वेरी पॉपुलर, दिस वाज द वेरी पॉपुलर, इज नहीं अभी भी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था एक्सपी। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड पावर वर्जन, फुल फॉर्म इसका होता है, लिख लीजिए राइट डाउन, विंडोज एक्सपी, दैट इज द विंडोज एक्सपी यानी कि एक्सटेंडेड पावर वर्जन। Have you written? Do you have written? Okay. So on October 25, 2001,
Windows XP is released with a redesigned look and feel that is centered on the usability and a unified help and support a service center. It's available in 25 languages from the mid 1970s century until the release of the Windows XP. About a 1 billion pieces have been shipped worldwide. For Microsoft, Windows XP will become one of its best-selling products. In the coming years, it's both so fast and stable. Navigation, the start menus, taskbar, and control the panels are more intuitive. Awareness of computer virus and hackers increases, but fears are to a certain extent clammed by the online delivery of the security updates. Consumers begin to understand the warning about a suspicious attachment and virus. There is more emphasis on help and support. Windows XP Home Edition offers a clean, simplified visual design that makes a frequently used feature more accessible. Design for home use, XP offers such enhancement as the network setup wizard, Windows Movie Maker and enhance the digital photo capabilities. यानी क्या था, हम लोग कह सकते हैं कि XP जब आया तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अमूमन मुख्य रूप से उस समय वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन एक्सपी ने क्या किया, उसमें इम्प्रूवमेंट किया। और इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसने एक एंटीवायरस को आया, एंटीवायरस यूज होने लगे और हैकर्स, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, वायरस और हैकर्स भी बढ़ना शुरू हो गए किसमें, एक्सपी में। सो हियर वी कैन से दैट विल बी गो, बट जैसे ही कंज्यूमर्स आगे बढ़े फिर विंडोज एक्सपी के एडिशंस चेंजेज होने लगे। पहला आया था होम एडिशंस, क्या नाम था उसका, राइट डाउन, विंडोज एक्सपी होम एडिशंस, और फिर दूसरा है विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल एडिशंस। राइट डाउन विंडोज एक्सपी होम एडिशंस और सेकेंड विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल एडिशंस। लिख लिया आपने। विंडोज एक्सपी होम एडिशंस offers a clean, simplified visual design that makes a frequently used feature more accessible. Designed for home use, Windows XP offers such enhancement as the network setup wizard, Windows Movie Maker, and enhanced digital photo capabilities. विंडोज एक्सपी होम एडिशन क्या कर रहा था, ऑफर किया आपको क्लीन, साफ सुथरा, सिंप्लीफाइड विजुअल डिजाइन दिया, आप ताकि डिजाइन कर सके, डेवलप कर सके, नेटवर्क सेटअप विजार्ड हो सके, मूवी बना सके, मूवी मेकर्स बन सके, आप फोटो की इम्प्रूवमेंट आ सके। और एक्सपी प्रोफेशनल ब्रिंग टू द, जबकि प्रोफेशनल क्या था, ब्रिंग्स टू द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द विंडोज 2000 to the personal computer desktop, enhancing the reliability, security, and performance with a fresh visual design. Windows XP Professional includes features for business and advanced home computing. Including remote desktop support, encrypting file system and system restore, and enhanced networking features. Kindly enhancement for the mobile users include a wireless 8.0.2 1.x and networking support, Windows messengers and remote assistance. Okay, so XP ने क्या किया, मैसेंजर्स टूल्स को ला दिया, वायरलेस को लाया, नेटवर्किंग सपोर्ट किया, फाइल को आप इनक्रिप्ट कर सकते थे, इंक्लूडिंग रिमोट डेस्क को भी आप कंट्रोल कर सकते थे, यानी आप रिमोट डेस्क दूर कोई कंप्यूटर है उसको भी आप सही कर सकते। बहुत सारे ऐसे फीचर्स लाए गए जो इसमें चेंजेस थे विंडोज। अब बात आई कि आखिर आर्किटेक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे दो तरह के आर्किटेक्चर आ रहे हैं। जैसे पहला ही मैंने बताया, एक 32 बिट आया और एक 64 आया। तो जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे थे कितने बिट पे काम कर रहे थे, 64 बिट पे। सो हियर we can say Windows XP 64-bit edition 2001 is the first Microsoft operating system for 64-bit processor designed for working with such as movie special effects, 3D animations, engineering, and scientific programs. Okay, and Windows XP Media Center Additional Center is made for the home computing and entertainment. That means what? क्या हुआ यहाँ पे हुआ क्या, हो क्या रहा है कि Windows XP आया तो जरूर, लेकिन उसके साथ प्रोसेसर भी तो चाहिए। अब आप प्रोफेशनल एडिशन आने से तो नहीं होगा ना, ऐसा आर्किटेक्चर भी तो होना चाहिए ना। अब आप ज़्यादा वजन का सामान रखेंगे और गाड़ी कम वजन, इंजन कम हॉर्स पावर का है, मान लीजिए उसका 2 आदमी का लिमिट है बाइक पे, और आप बैठा लिए 5 आदमी को, तो क्या होगा,
वो कर पाएगा? नहीं होगा, वो उसको आगे नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस गाड़ी के इंजन जैसे मान लीजिए बुलेट है, उसका हॉर्स पावर ज़्यादा है, तो उस पे 4 आदमी बैठ जाए तो वो कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि उसका इंजन वैसा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर प्रोसेसर का, अगर आपने एक्सपी प्रोफेशनल ले आया लेकिन आर्किटेक्चर आपका क्या है, 32 बिट है, क्या होगा? स्लो काम करेगा। अगर आपका 64 बिट है तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से वर्क कर लेगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, फिर आया विंडोज एक्सपी टैबलेट पीसी एडिशंस। वी कैन से in 2002 it was released in 2006 with the strongest security system at users account control helps to prevent the potentially harmful software for making changes to your computer in a Windows Vista. Ultimate BitLocker drivers encryption provided a richer data protection to your computer as a laptop sells and security needs to increase. Windows Vista also features enhancement to your Windows media players as more and more people come to see their PCs, personal computers as a central location for digital media. Here we can watch televisions, view and send photographs and edit videos. यानी क्या था, जब टैबलेट एडिशन आए, पीसी के एडिशन आए 2002 से 2006 में, तो अब आप कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे टीवी भी आसानी से देख सकते हैं, ये फैसिलिटीज़ दी गई। फिर बिट लॉकर्स आ गए, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, क्रिप्ट कर सकते हैं, आप जितने भी अकाउंट्स हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते थे, है ना। टेलीविजन का देखना, मेल को सेंड करना, फोटोग्राफ्स को सेंड करना, वीडियोज एडिट करना, बहुत सारे, जैसे जैसे वर्जन चेंज होता है उससे फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। अब देन राइट नाउ अमूमन अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, अभी तो विंडोज 10 भी है, लेकिन विंडोज 7 भी बहुत पॉपुलर हो गया और अभी भी इसको मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विंडोज 7 ही यूज किए जा रहा है। रीजन क्या है? देखिए विंडोज 7 क्या था, इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोड्यूस्ड for use on a personal computers. It is the follow-up the Windows Vista operating system, which was released in 2006. An operating system allows your computers to manage software and perform essential tasks. It is also a graphical user interface that allows you to visually interact with your computer's functions in a logical, fun and easy way. For example, in Windows 7, we can view two windows wide by sharing the arrow features, the snap features. The features automatically sizes or snaps to windows to fit together on the screen, thus allowing to the convenience of the viewing them next to each other. Windows 7 was released to manufacturing on July 22, 2009 and reached a general retail availability worldwide on October 22nd, 2009. Less than 3 years after the release of its predecessors, Windows Vista and servers are compared to Server 2008 and Arch. यानी क्या है, Windows 7 बहुत ही, इसमें क्या हुआ, पहले बहुत सारे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती थी। अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है कंप्यूटर्स में, ड्राइवर चाहिए। बहुत सारे गैजेट्स के लिए अगर आपको यूएसबी कनेक्ट करना है तो ड्राइवर चाहिए, सॉफ्टवेयर। लेकिन विंडोज 7 आया तो इनबिल्ट बहुत सारे फीचर्स ला दिए। अब आपको हर काम के लिए सॉफ्टवेयर को पहले से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पहले ये चीज़ होता था। सेकेंड, एरो फीचर्स आया। थर्ड, आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो गया। फिफ्थ, आप आसानी से सभी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज 7। विंडोज 7 को आप यू कैन रन विंडोज 7 ऑन 2 आर्किटेक्चर। विंडोज 7 को आप 2 आर्किटेक्चर पे करा सकते हैं। एक है आपका आप कह सकते हैं 32 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर। दूसरा क्या है बताइए? विंडोज 7 कभी भी 16 बिट पे नहीं चलेगा, जब भी चलेगा वो 32 बिट या देखिए। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखिए आर्किटेक्चर क्या हुआ, 32 बिट है, जबकि इसमें क्या है 64 बिट है। इसमें प्रोसेसर कितना है 1 गीगाहर्ट्ज 32 बिट प्रोसेसर के लिए, जबकि इसमें क्या है 64 x86 64 प्रोसेसर के लिए। मेमोरी रैम कितना है इसमें 1 GB है।
1 GB से। इसमें ग्राफिक्स कार्ड कितने हैं? डायरेक्ट एक्स 9 ग्राफिक्स प्रोसेसर विथ WRAM ड्राइवर मॉडल 1.0 लग जाते हैं, जबकि एक्सपी में सारी चीजें। फिर एसटीडी हार्ड डिस्क फ्री स्पेस कितना चाहिए इंस्टॉल करने के लिए? 32 बिट में कितना चाहिए? 16 GB। और 64 बिट के लिए कितना चाहिए? 20 GB फ्री डिस्क। ऑप्टिकल ड्राइव डीवीडी रोम ड्राइव हो सकता है, तो चलिए डीवीडी रोम में हो सकते हैं। यस या नो? समझ में आ गया? इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, डू फास्ट। अब इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। हो गए? चलिए मिनिमाइज कर लें। अब देखिए हम लोग इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल, हम लोग का प्रोसेसर का लिमिट। देखिए लिखा हुआ है द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ द लॉजिकल प्रोसेसर इन अ पर्सनल कंप्यूटर्स that Windows 7 is 32 for 32 bit, 256 for 64 bit. That means the maximum number of physical processor in a personal computer that a Windows 7 support is 2 for professional, enterprises and ultimate, and 1 for starter, home basics and home premium. हर तरह के विंडोज आप ओवरलैप होके आते हैं। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए वेल विंडोज 7 क्या किया, लेस मेमोरी यूज कर रहा है, स्लिप कर सकते हैं आप, सिस्टम को रिज्यूम कर सकते हैं, आसानी से आप कनेक्ट रीस्टोर कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, डाटा का बैकअप ले सकते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें इसके पीछे थी। अब क्या क्या विंडोज कर सकता है? पहला काम क्या है? व्हाट कैन डू विंडोज 7। आप क्या क्या कर सकते हैं? इसमें पहला फीचर्स का नाम क्या है? एरो। क्या नाम है फीचर्स का? एरो। एरो क्या है? इट इज एन इंटरफेस दैट मेक्स योर विजुअल इंटरैक्शन विथ योर डेस्कटॉप फन एंड इजी। Arrow picks makes you open a Windows transparent so you may see your desktop. It also allows you to pick at times in your taskbar for a thumbnail preview. आप किस रूप में प्रीव्यू को देखते हैं? थंबनेल के रूप में। Arrow snips is a quick resize windows from a sensors windows and view the flip. आप कैसे फ्लिप कर सकते हैं? ये फ्लिप करने के लिए आपको जरा एक बताते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, देखिए हम लोग करते हैं कंट्रोल प्लस विंडोज करते हैं। देखिए प्रीव्यू और व्यू आपके सामने बन के आएगा, अगर होगा तो बन के आएगा। देखिए आगे इसके फीचर्स पे आएंगे हम लोग। आ गया ना जो चीज मैं बताना चाह रहा था? देखिए क्लास आप लोग देख रहे हैं ना, आ गया कि नहीं बन के? आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकली समझ में आया कैसे? क्या अल्ट विंडोज प्लस कंट्रोल देख लीजिए, ALT प्लस CTR प्लस विंडोज का साइन आप करेंगे। एक बार में करेंगे तो फिर आ जाएगा इस तरह से बन के। टास्क बार फीचर्स क्या होता है? देखिए टास्क बार किसको कहते हैं? ये आपका क्या है? टास्क बार है। इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। ये टूल बार भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज आप जाएंगे, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टास्क बार। आप लॉक कर सकते हैं टास्क बार को, ऑटो हाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा? ये आपका देखिए नीचे ऑटो हाइड हो जाएगा। जब आप जाएंगे आगे देख रहे हैं आ रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लास देख रहे हैं? तो क्या है, आप चाहते हैं कि ऑटो हाइड नहीं हो तो प्रॉपर्टीज जाएंगे और इसको अनलॉक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? स्मॉल आइकन से जो है टास्क बार का आइकन स्क्रीन्स है, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन एरियाज हैं, स्टार्ट मेनू है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। आप चाहते हैं कि स्टार्ट मेनू किस तरह से डिस्प्ले हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। दैट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ टास्क बार यू कैन कॉन्फ़िगर ऑल थिंग्स। आप सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टूल बार आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ बन के आए, एड्रेस बार देखिए आपके सामने आ जाएगा बन के। देखिए आ गया ना एड्रेस बार। आप लिंक चाहेंगे तो लिंक्स बन के आ जाएंगे। आप टैबलेट PC इनपुट चाहेंगे तो ये बन के आ जाए। आप चाहेंगे डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप बन के आ जाए। समझ में आया कि नहीं? आप जो भी चीज़ आएंगे उसको चेक करते जाएंगे, जो चीज़ नहीं चाहिए उसे अनचेक कर दीजिए। आज जो सब क्लियर है? यही चीज़ है टूल्स बार के बारे में, यही चीज़ बताया जा रहा है। देखिए वही चीज़ जो हमसे आपको मैंने समझाया। अब देखिए एक और पॉइंट्स आता है लाइब्रेरीज। एक क्या होते हैं? लाइब्रेरीज एक होते हैं। लाइब्रेरीज होता क्या है? जैसे आप यहाँ पे जाएंगे,
ये कंप्यूटर्स में आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखिए। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एक तरह का कलेक्शंस होता है जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं। लाइब्रेरी क्या करता है, अलाउज करता है कि यू कैन ऑर्गेनाइज द फाइल इन वन प्लेस सो दे आर इजी टू सर्च एंड एक्सेस। विंडोज 7 हैज 4 डिफॉल्ट टाइप। विंडोज 7 के पास क्या है, पहले से एक 4 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज है, जिसमें पहला है डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड है म्यूजिक, थर्ड है पिक्चर्स, फोर्थ है आपका वीडियोज, और नेक्स्ट बहुत सारे, और आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास, मैं क्रिएट करने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान देंगे। देखिए इस पे हम गए और यहाँ पे क्या कि हियर वी कैन सी, क्या ये लाइब्रेरीज बनाए गए हैं पहले से। इसके अंदर आप नंबर ऑफ फोल्डर सकते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, यस या नो। अब देखिए यहाँ पे डिलीट कर दिए, अब हमारे पास है। तो पहले से लाइब्रेरीज बना हुआ रहता है विंडोज, यहाँ पे चूंकि मैं डिलीट कर चुका हूँ इसलिए नहीं है। अब आप लाइब्रेरीज बनाइए, तो आप मान लीजिए क्या नाम है आपका, बिट्टू। सर्टिफिकेट नेम क्या है, ठीक है बिट्टू कुमार। तो क्या है, ये आपका बन गया। अब ये बन तो गया, अब इसमें आप क्या कीजिए, जितने सारे फोल्डर्स है सब फोल्डर्स को क्या कीजिए आप इंक्लूड, मान लीजिए डी ड्राइव है या सी ड्राइव है, इतने सारे फोल्डर्स हैं। मान लीजिए किसी को आप, मैंने ले लिया, यहाँ पे देखिए इतने सारे फोल्डर्स, इसको इंक्लूड कर लिए। तो यहाँ पे इंक्लूड फोल्डर्स देख रहे हैं, सब आ रहे हैं कि नहीं। एक से अधिक फोल्डर्स को, दैट मीन्स अब बिट्टू कुमार, फिर बिट्टू कुमार पे जाएंगे मैनेज, फिर इसको क्या करेंगे, इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड फोल्डर्स। मीन्स क्या हुआ, एक से अधिक फोल्डर्स को आप आसानी से एक लाइब्रेरीज में रख सकते हैं। आपको बार बार उस फोल्डर को जाने की जरूरत नहीं है। तो लाइब्रेरीज हो गए, बहुत सारा आपके ऊपर निर्भर करता है जितना बनाना चाहिए। अब इसको ओपन कीजिएगा, देखिए यहाँ पे सैना का अगर बना हुआ, जिनका बना हुआ है वो आ जाएगा फोल्डर्स। बताया कि पिट्स डाउनलोड फोल्डर्स के नाम में है ना, इस तरीके से। अब चलिए गैजेट्स क्या होता है, जो राइट साइड में होता है, दैट मीन्स यू कैन सिलेक्ट और डाउनलोड गैजेट्स सच एज स्लाइड्स टू कैलेंडर्स वेदर्स। यहाँ पे से मान लीजिए हम यहाँ पे गए, हम चाहते हैं कि राइट में यहाँ पे जाके साइड राइट साइड से गैजेट्स लिखिए, ये पॉसिबल है। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद गैजेट्स पे क्लिक करेंगे, एंड हियर वी कैन सी देयर लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो ये आ गया, फिर यहाँ पे सीपीयू मॉनिटर्स आ गए, करेंसी आ गए, फिर हेडिंग्स आ गया, फिर हमारे पास पिक्चर्स पजल्स आ गए, स्लाइड शो आ गया, फिर हमारे पास वेदर्स विंडोज मीडिया प्लेयर्स आ गए। आपने समझा कि ये क्या है, आपके ऊपर निर्भर है। आज डेट क्या है, 31 अगस्त, 31 अगस्त 2021। समय कितना हो रहा है, 10 बज रहा है। ये सारी चीज़ से, ये क्या है सीपीयू मीटर से, ये क्या है करेंसी सिंबल, ये सभी चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। ये सभी चीज़ आपके सामने दिख रहा होगा, है ना, समझ में आ गया। सभी चीज़ यू कैन सी एंड यू कैन डू एनीथिंग, सारे काम आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एडिशनल थिंग्स यू कैन डू इन विंडोज 7। एडिशनल थिंग्स क्या है, डिवाइस स्टेजेस होते हैं, आप प्लग इन प्ले, मैंने पहले बता चुका हूँ, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि डिवाइस स्टेज व्हेन यू प्लग अ डिवाइस इनटू योर कंप्यूटर सच एज कैमरास, मोबाइल फोन एंड फ्लैश ड्राइव और विंडोज विल डन will open up with a menu of the popular task status information, live essential, home group, विंडोज टच, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप का फीचर्स है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे पर्सनलाइज, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप। अब ये आप एरो थीम लिए तो आपका क्या हो गया, एरो थीम्स बन के आ गया, देखिए एरो थीम्स बन के आ गया। अब हर आइकन उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब आप आर्किटेक्चर थीम की, देखिए आर्किटेक्चर थीम बन के आ गया, यस एंड। तो ये सिर्फ डेस्कटॉप ही नहीं चेंज हुआ, इसके साथ ही साथ इसके बहुत सारे फीचर्स भी इनके इनबिल्ट चेंज हो गए। कैरेक्टर्स में देखिए इस तरह से चेंज होकर आ गया, यू कैन सी लैंडस्केप देखेंगे तो इस तरह से चेंज होकर आएगा। यू कैन चेंज नेचर, तो नेचर चेंज होकर आएगा। यू कैन स्किन्स चेंज कर सकते। अब फिर से हम आ गए अपने पैटर्न्स पे जहां हम लोग का था, समझ में आ गया। और ये क्या है, बेसिक एंड कंट्रास्ट थीम। अब जैसे देखिए विंडोज क्लासिक तो उसका नॉर्मल होता है, अब देखिए उसका इस तरह से विंडोज बन के आता है नॉर्मल। हाई कंट्रास्ट देखिए चेंज हो गया, हाई कंट्रास्ट। आप अगर चाहिए हाई कंट्रास्ट 2 तो ये हाई कंट्रास्ट ब्लैक,
ये चेंज हो जाएगा। हाई कंट्रास्ट व्हाइट, देखिए व्हाइट बन के आ जाएगा। तो दैट मीन्स आप वो सारी चीज़ों को आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से खुद कर सकते हैं। तो बेसिकली हम किसको चेंज करने जा रहे हैं, विंडोज 7 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। विंडोज 7 बेसिक्स अब यहाँ पे रन कर ली, तो जैसे पहले थे उस तरीके से अपने पैटर्न्स पे आ गए। समझ में आ गया? वही चीज़ यहाँ पे एरो फीचर्स बताया जा रहा है। अब आप कुछ भी इमेज को चेंज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए आप अगर चेंजेस करना चाहेंगे, यू कैन आल्सो चेंज। आप यहाँ पर चेंज डेस्कटॉप योर अकाउंट फीचर्स, डिस्प्ले पे जाएंगे, आप यहाँ पे मीडियम कर देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, स्मॉलर कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। या आप यहाँ पे एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट चाहते हैं, कस्टम टेक्स्ट चाहते हैं, दैट मीन्स यू आर कैपेबल टू एडजस्ट ईच एंड एवरीथिंग। यू कैन आल्सो एडजस्ट द रेजोल्यूशंस, इन चीज़ों को भी आप कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिस्प्ले 1280, 1240, 1280, 730, 600, 760, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हो, सारी चीज़ें आपको हो जाएगी। ठीक है, सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये डेस्कटॉप पिक्स हो गए, ये सारी चीज। स्टैक क्या हुआ, व्हेन योर डेस्कटॉप इज क्लचड टू विंडोज देन यू कैन सी फोकस। आप जो आप विंडोज को लाते हैं और फ्लिप करते हैं, फ्लिप का आपको मैंने बता चुका है ना, फ्लिप एंड 3D, जैसे आप मुड़ना चाहते हैं 3 डायमेंशन, इस तरह से आप चाहते हैं वीडियोस देखें, किस तरह से, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस विंडोज की प्लस टैब। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल प्लस विंडोज, लिखा आर यू सीइंग ना, यस, कंट्रोल विंडोज, जितने आइकन्स, जितने हमारे आइकन्स खुले रहेंगे उतने ना। मान लीजिए हम ए भी खुले हुए हैं, ए भी ओपन है, मान लीजिए ए भी ओपन है, अगर ए भी एप्लीकेशंस ओपन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ओपन आएंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ए भी एप्लीकेशन है, तो अब कितने आएंगे, देखिए सभी विंडोज दिखेंगे एक बार में। हम देखिए अभी तो हम एक बार में सभी चीज को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम देखिए CTRL, देखिए यहाँ पे CTRL विंडोज और टैब आ गए कि नहीं आ गए, टोटल जितने विंडोज हम लोगों ने खोला आया कि नहीं आया, अब आपके ऊपर है। इससे क्या होता है कि आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं, यू कैन प्रेस लाइक दिस वन, यस या नो, समझ में आ गया आपको। अमूमन आप समझ चुके हैं सारी चीज़ों को। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, 3D फ्लैप्स भी बता दिया आपको, टास्क बार का फीचर्स बता ही चुके हैं, कैसे टास्क बार के फीचर्स को ऐड करते हैं। कमांड ये सब लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेस जंप शो डेस्कटॉप, ये एक्शन सेंटर क्या होता है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, दिस इज अ नोटिफिकेशन एरिया। ये क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया जो बतलाता है। देखिए यहाँ पे एक्शन बार, देखिए हमें ना, देखिए एक्शन सेंटर, दिस इज एक्शन सेंटर, ये एक्शन सेंटर। ये आपको देखिए अगर आप कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है, जो चीज़ है वायरस है, कुछ भी एरर्स होते हैं नोटिफिकेशन से बतलाते हैं, ये सारी चीज़ें है विंडोज से उसमें। ये सब चीज़ हम लोगों ने कर लिया। डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी चेंजेस भी कर लिए, ये भी आपको करके बता चुका हूँ। फॉन्ट सेटिंग, तो फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं आप। कहाँ जाएंगे, सर्च बार में जाएंगे, यहाँ देखिए स्टार्ट मेनू में जाएंगे, स्टार्ट मेनू से सिलेक्ट फॉन्ट्स, या डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे फॉन्ट्स, फॉन्ट्स नाम का फोल्डर आ गया, यू कैन सी बहुत सारे फॉन्ट्स आपके सामने दिख गए। अब जो फॉन्ट्स आपको चेंज करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है, आप फॉन्ट्स चेंज कीजिए, चेक कीजिए, यहाँ पे कॉपी करके इंस्टॉल कीजिए। चेंज द फॉन्ट साइज, आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। क्लियर टाइप, ये भी आपका हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें आपने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेज यूजर अकाउंटिंग एंड पैरेंटल क्लास, यानी नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह हम लोग देखेंगे कि यूजर अकाउंट, यानी देखिए विंडोज 7 में पैरेंटल कंट्रोल भी देता है कि आपके ऑप्शन में आपका कंप्यूटर को यूज न कर पाए। तो उसके लिए वी कैन डिस्कस अबाउट द पैरेंटल कंट्रोल टेक्निक्स, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे एडमिन बनाते हैं, कब कंट्रोलिंग करेंगे, क्या यूजर देख सकता है, क्या यूजर नहीं देख सकता है, क्या स्टैंडर्ड यूजर दिखेगा, क्या एडमिनिस्ट्रेटर देखा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सप्ताह में। ओके क्लास, तो असाइनमेंट आपको हम दे रहे हैं, आप असाइनमेंट्स थोड़ा बना लेंगे नोट्स को देखते हुए। राइट द स्टेप्स, assignment submit 2 PM बिफोर। कुछ बच्चे को मैंने लिख के भेजा है, शायद वही कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, तो टाइम बच जाएगा।
ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे explain Windows 7, explain Windows 7 architecture, differentiate between 32-bit and 64-bit processor. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, differentiate between explain the following terms. Explain the Windows, differentiate में वर्जन्स, जितने भी वर्जन्स हैं विंडोज के उन सभी के बारे में एक्सप्लेन, राइट द स्टेप्स फॉर, स्टेप लिखना है कि कैसे हम चेंज करेंगे एरो फीचर्स. क्वेश्चन नंबर 5, write the steps for shape features. Write the steps for explain the task, explain, define, write the steps for taskbar, library, 3D flip, मैं बताया ना 3D flip करके, 3D flip, तो क्लास यहाँ तक सेंड कर दीजिए इसको. यहाँ टोटल क्वेश्चंस है, आप इसे बना के कंप्लीट करेंगे. ध्यान रखेंगे जितने भी क्वेश्चंस है इसको अच्छे से बनाइए. 7 आर्किटेक्चर्स बना के 2 PM से पहले आप इसको सबमिट करेंगे. जब तक आप असाइनमेंट बनाएंगे तो थोड़ा स्टेप्स भी आपको याद हो जाता है, रिमेंबर कि आप उन चीज़ों को आपने किया है. ठीक है, सो सेंड कीजिए, डू फास्ट, नेक्स्ट बैच के टाइम हो रहे हैं. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. राइट नाउ अब मैं लेक्चर्स कवर करूंगा, बट आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे तब जाके क्लियर होगा. ओके, थैंक यू.